Hello children, I hope you all are good. Today we are going to discuss the other topic of SST that is also going to categorize in geography. Chapter number 16, Natural Resources, Land and Soil. As the name suggests, in this chapter we are going to study about the two natural resources, land and soil. So let us start the chapter with the land. Land is one of the important gift of not mine. मैंने आपको गिफ्ट नहीं दिया ये. It is a gift by the nature. We live on air or in land. On the land. We are not living in the atmosphere only. We are living on the land. Most of our needs are fulfilled on land. So it will very important to know about the land. जब हम रहते उसी पे हैं, बहुत सारी ज़रूरतें उससे पूरी हो रही हैं, तो लैंड के बारे में पता भी होना चाहिए. लैंड यूज़ कैसे होता है? The land covers about 29% of our surface. ये डाटा आपको पता होना चाहिए बेटा. However, the whole of it cannot be used because its surface is uneven, not uniform at a particular place or all places. Uneven आपको मिलेगा. It's a hilly or plain area, plateau, desert or different places. Moreover, land use is governed by the number of factors. ऐसा नहीं होता ना हर एक जगह पे एक जैसा हम काम कर दें. रिलीफ फीचर पे डिपेंड करता है, सॉइल पे, क्लाइमेट पे, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पे, लेवल ऑफ डेवलपमेंट पे, ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है लैंड यूज. ओइंग टू दीज फैक्टर्स only 30% of land is inhabited with the remaining is sparsely inhabited. जितना हमारे पास लैंड है ना उसका सिर्फ 30% हम यूटिलाइज कर पा रहे हैं. There are some areas such as Antarctica region which are not at all inhabitant. कौन रहेगा वहाँ पे? रह नहीं पा रहे अभी हम वहाँ पे. Inhabitant है. Important factors which make it difficult to inhabit a piece of land include steep mountainous slope or areas which are completely waterlogging, thick forest, Amazon के जंगल में जाके रहें, extreme cold, lack of water, infertile soil. ये सारी कंडीशंस जो है ना ये चेक करनी पड़ती हैं और इनकी वजह से जो वो पर्टिकुलर एरिया होती है ना वो इनहैबिटेंट्स हो जाती है. इसीलिए हम टोटल लैंड यूज नहीं कर पाते हैं. We use land for many purposes. For example, we use the land for settlement, then cultivation, grazing the animals, mining करते हैं हम उस पे, setting up the industries, building, construct करना, roads, railways, dams and other facilities also. So land fulfills our need of food. More than 95% of the greater part of clothing and housing and all needs of wood for both fuel and the construction came from the land. Man's construction activities change the land use at a great deal. जैसे पहले यूज़ होता था और अब के यूज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं लैंड यूज़ में. लैंड फॉर्म्स की बात अगर हम करें बेटा, सो लैंड सरफेस को वी डिवाइडेड इनटू 3 मेन लैंड फॉर्म्स, दैट इज माउंटेन्स, आफ्टर दैट प्लेन्स एंड देन प्लेट्यू रीजन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मूव टू द माउंटेन्स. माउंटेन्स का नाम सुनते ही हमारे पास फिगर कैसे आती है ना, पूरी विजुअलाइज हो जाती है. ओह, this is the mountain. So mountains are high altitude region. Altitude, height. बहुत ऊंचाई वाले रीजन पे ये मिलते हैं हमें. They are normally in the form of long chain. अगर आप इन्हें देखोगे ना तो ऐसे आपको चेन मिलेगी. आप बनाते भी हो ना ड्राइंग में सीनरी इस टाइप की, तो ऐसे मिलेंगे चेन में. They are an important features of all the continents. Age of mountain can be seen from how their peaks look. Old mountain became rounded from the top, you can see, and at the low altitude because they are the old and forces of erosion work on them like Aravalli Hills in India. On the other hand, young mountains are high and steep, conical like the Himalayas in India. Some of the major mountain ranges in the world are Rocky, North America में है आपके, Andes, South America में है,
बेटा देखो ये आपको मैचिंग में भी आ जाता है, कई बार बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम में ये आपको फिलअप फॉर्म में भी पूछा जाता है. सो यू मस्ट हैव रिमेंबर द माउंटेन चेन्स ऑफ द वर्ल्ड. रॉकी कहाँ पे है? नॉर्थ अमेरिका, फिर एंडीज आपका साउथ अमेरिका, एल्प्स यूरोप में, एटलस अफ्रीका में, एंड द हिमालयाज इन एशिया. कुनलुन शान आपका है एशिया में, देन किंग एंड शाह आपका एशिया में, ये भी आपका एशिया में पड़ता है, एंड ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इन द ऑस्ट्रेलिया. So they are the important mountain ranges in the world. Now these mountains may be sparsely inhabited, yet they are very useful because of their forest and vegetation, which are the source of wood, medicinal herbs and spices. These forests also have a variety of wildlife. बट इतना सब कुछ होने के बाद भी ना बेटा माउंटेनियस रीजन पे आप ये नहीं कह सकते कि डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया बिकॉज ऑफ द हार्श क्लाइमेट. हाई माउंटेन्स आर ऑल्सो होम टू द ग्लेशियर्स. अब ग्लेशियर से क्या होता है, बहुत सारी पेरिनियल रिवर्स जो हैं वो ओरिजिनेट होती हैं. नाउ व्हाट आर पेरिनियल रिवर्स, ये तो आपने पूछा ही नहीं. पेरिनियल रिवर्स आपको पता होना चाहिए बेटा, द रिवर्स विच आर हैविंग द वाटर थ्रू आउट द ईयर. साल भर उसमें पानी भरा रहता है, वो सूखती नहीं है बिकॉज ग्लेशियर जो है वो मेल्ट होते रहती है उसकी बर्फ और वो पानी उन्हें मिलता रहता है. So that's why perennial river. These rivers get water from the melting snow of glacier. When these rivers descend on the lowland, they not only give water but also form a fertile layer of soil. So that's why these rivers also form the plain. And moreover, these mountainous region is the tourist attraction because they are having the beautiful, great scenic pictures and cold climate to attract the people to come here. Now the second relief feature is the plain. Plain provide the most favorable condition for the settlement. सबसे ज़्यादा जो लोग रहना चाहते हैं वो प्लेन में रहना चाहते हैं. That's why the plains are very densely populated area. They are the low flat area with the fertile soil. The plains are usually drained by the big rivers and their tributaries provide the enough water for consumption, for cultivation, agriculture, and moreover the plains are providing the necessary condition for the constructional activity. Easy to build the road, railways and other buildings on the plain. That's why they are the highly densely populated area. In the view of these, there is no wonder that the plains have been the cradle of great civilization. कितना बढ़िया टाइटल दिया गया है प्लेन को, cradles of great civilization in the history. यानी इतनी बड़ी बड़ी civilizations जो है वो इन प्लेन्स के आसपास डेवलप हुई हैं. मेजर प्लेन अगर आप देखोगे वर्ल्ड के बेटा, सो इंडिया में आपको मिलेगा गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन जो कि एशिया कंटिनेंट में आता है, देन प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका में, आफ्टर दैट स्टेप्स इन यूरोप एंड देन यांगजे क्यांग प्लेन्स इन एशिया. प्लेट्यूज की बात करें तो ये थर्ड रिलीफ फीचर है माउंटेन और प्लेन के बाद. प्लेट्यूज आर लाइक दिस, द टॉप टेबल लैंड. थोड़ा सा ना तो ये माउंटेन है ना ये प्लेन है, ये टेबल लैंड की तरह है इस तरीके से. सो प्लेट्यूज आर हाई flat lands, so they are also known as table land. With a rocky surface, most of the plateaus are very rich in the minerals. That's why plateaus are also known as the storehouse of minerals. अब अगर वर्ल्ड के वेल प्लेट्यूज की बात करें तो उसमें आपका आता है ब्राजीलियन प्लेट्यू ऑफ साउथ अमेरिका, आफ्टर दैट डक्कन प्लेट्यू ऑफ एशिया, बोलिवियन प्लेट्यू इन द साउथ अमेरिका, एंड देन तिप्तन प्लेट्यू एशिया एंड अरेबियन प्लेट्यू वंस अगेन इन एशिया. नोइट पे चलते हैं बेटा. आपको डेजर्ट दिया हुआ है कि डेजर्ट क्या होता है. इट कैन बी प्लेन एज इन राजस्थान और हिली लाइक इन लद्दाख. देयरफॉर इट हैज़ नॉट बीन डिस्कस सेपरेटली. कि डेजर्ट को ना तो देखो हम प्लेन में डाल सकते हैं, ना हम हिल में डाल सकते हैं, ना प्लेट्यू में, क्योंकि इसके अलग अलग फीचर्स होते हैं. डेजर्ट का नाम आते ही ना हमारे दिमाग में सैंड आती है, तो डेजर्ट कहीं आपको प्लेन दिखेंगे और कहीं लद्दाख की तरह हिली एरिया कोल्ड डेजर्ट भी दिखेंगे. नाउ मूविंग टू द लैंड फॉर्म एंड लैंड यूज इन इंडिया. भाई इंडिया में तो
we are having the different topography and different relief feature. India is blessed with the physical feature. माउंटेन हमारे पास हैं, प्लेन हमारे पास हैं, प्लेट्यूज हमारे पास है, सब कुछ है. So these physical features have influenced the occupation, lifestyle, food habits, dress habits, etc. of the people, है ना. So India is blessed with the different physical feature. That's why it's a unique country. अब इंडिया के लैंडफॉर्म से लेते हैं हम. सबसे पहले बात करेंगे हम माउंटेन्स एंड हिल्स की. सो ग्रेट हिमालयाज. माउंटेन्स का नाम आते हैं ना, हमारे दिमाग में हिमालयन रीजन चलने लगता है. इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया विच आर द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड ऑल्सो. दे आर होम टू द ग्लेशियर्स from which the snow melts and feed to the perennial river such as Ganga, Yamuna, Brahmaputra, Sutlej, etc. Besides these Himalayas, there are several other hills in India which include Garo Khasi and Jayantia. अब जब मैंने आपको गारो खासी एंड जयंतिया बोला है, so find out in the map where is it. See, can you see this Bangladesh? और यहाँ बांग्लादेश के ऊपर आपका कौन सा स्टेट है? मेघालय. गारो, खासी, जयंतिया, ब्यूटीफुल सिस्टर्स. ऐसे ये तीन ना पहाड़ियाँ इतनी सुंदर लगती है, लगता है जैसे तीन बहनें जो हैं खड़ी हैं वहाँ पर. सो ये गारो, खासी, जयंतिया हिल्स है नॉर्थ ईस्ट में. देन अरावली जो है आपकी नॉर्थ वेस्ट में है. यू कैन सी अरावली हेयर. दिस इज थार डेजर्ट एंड हेयर इज द अरावली. आफ्टर दैट वी आर हैविंग द सतपुड़ास एंड विंध्यान रेंज. सतपुड़ा और विंध्यान रेंज आपको मिल जाएंगी बेटा एमपी से, अगर आप निकलोगे इधर सतपुड़ा और विंध्या रेंज. देन आपकी नीलगिरी हिल्स आपके सदर्न इंडिया में यहाँ पर आपको मिल जाएंगी. सो इन दिस वे इंडिया इज हैविंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटेन्स एंड हिल्स. मूविंग टू द प्लेन्स. प्लेन्स की बात करते हैं हम. सो टू द साउथ ऑफ हिमालय, दैट इज योर नॉर्दर्न mountain range extending to the eastern part of India. अब इसके साउथ में आप देखो ये जो ग्रीन ग्रीन एरिया दिख रही है ना आपको, this is the plain, northwestern plain. The river originating in the Himalayas flow in the northern plains where they collect the silt brought from the mountains and thus made the great fertile northern plain. These plains are also called as Indo-Gangetic plains after the names of the river Indus and Ganga. It is easy to build roads and railways in the northern plain, so the large population reside here. The climate in the northern plain is extreme. That is, it is very cold in the winter season and very hot in the summer season. Beside the Indo-Gangetic plains, there are plain coastal area along the Arabian Sea in the west and the Bay of Bengal in the east and the Indian Ocean in the south. So you can see these coastal plains. This is with the Arabian Sea west में. This is in the east with the Bay of Bengal and here in the south with the Indian Ocean. Now after the plains we are moving to the plateau. Plateau, the large part of the central and south India is the plateau. The important river in the plateau region are Narmada, Mahanadi, Krishna, Kaveri and Tapi. आप ये देख सकते हैं रिवर नर्मदा, तापी, कृष्णा, कावेरी. सो इस तरीके से ये रिवर्स जो हैं यहाँ से निकलती हैं. और आप देखो बेटा ये जो आपका सेंट्रल इंडिया है, फिर आपका ये नीचे का पोर्शन ट्रायंगुलर शेप में जा रहा है, ये प्लेट्यू रीजन है. बिसाइड द अबव फीचर द मेन इंडिया देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ आइलैंड ऑल्सो. अंडमान निकोबार आइलैंड कहाँ पे है? मैप में देखो, बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार आइलैंड. एंड देन वी आर हैविंग द लक्षद्वीप in the Arabian Sea. So these two groups of islands are also here in the India. Now moving to the land use in India. The varied topography of India. Topography means relief feature जो हमने discuss किए ना, mountains, plateau, plains. That can be divided into 30% mountainous area. That data you should know. इसको आप पाई ग्राफ में भी शो कर सकते हो. 30% माउंटेनियस एरिया है इंडिया में.
43% हमारा प्लेन एरिया है एंड 27% हमारा प्लेट्यू रीजन है। और बेटा इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम में, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में भी पूछे गए हैं इन क्लास 10th। सो ये डाटा आपको लर्न होना चाहिए। Being a populous country, India needs to produce food crops for the consumption and raw material for vast population. See, all types of land cannot use. आप देखो माउंटेनियस है, प्लेट्यू है, आपका प्लेन है, हर जगह तो हम एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। इट डिपेंड्स ऑन द सॉइल फर्टिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड रिलीफ फीचर ऑल्सो। So in view of rapid growing population, it is very essential to make proper planning and strategy for the land use so that right kind of land can be available for appropriate purpose. For this purpose, what we have to do? Modern and scientific technique should be used so that we can conserve our land resources from the serious problem, and we can utilize in a planned manner, in a judicious manner. Otherwise what happen? Unplanned conversion of land use will lead to the shortage of land for agriculture. Unscientific farming techniques will lead to the soil erosion or desertification. That is going to degrade the soil. So we need the proper planning, proper technique. Now moving to the next natural resource, that is the soil. Soil क्या होती है? Upper layer of land. That is the soil. It is in that plants where the plants grow and crops grow. Soil में grow करते हैं ना. It is very important natural resource. Very thin layer होती है. Top soil की जो बड़ी thin layer होगी ना, उसमें हम इसे grow करते हैं. The quality of land is determined by the soil cover it has. जितना अच्छा सॉइल कवर होगा उतनी अच्छी हम कहते हैं लैंड क्वालिटी है। आप क्या कर सकते हो? आप मिट्टी लो हाथ में ऐसे करके, किसी भी ग्रासी एरिया से, जो प्लेग्राउंड हो ना, अब उसको ध्यान से देखो तो तुम्हें दिखेगा उसमें छोटे छोटे स्मॉल रॉक फ्रेगमेंटेशंस नज़र आएंगे या ऑर्गेनिक मटेरियल नज़र आएंगे। उसमें सॉइल बनती कैसे है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। द सॉइल इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स. It takes hundreds of years for 1 centimeter of top layer to be formed. रख लो आप इसे रिन्यूएबल रिसोर्स में, पर मिलियंस ऑफ ईयर लग रहा है। The important factors which influence soil formation are climate, nature of parent rock, plant, animal, topography, time. ये सब डिपेंड करता है। ये सब कैसे हैं उसके हिसाब से आपकी सॉइल फॉर्म्ड होती है। Most of the places the parent rock is the source of soil. And its composition and texture depends on it. अब आपका पेरेंट रॉक कैसा है उस पर भी तो डिपेंड करेगा ना सॉइल। आप मेटामॉर्फिक रॉक से वो सॉइल बन रही है, या सेडिमेंट्री रॉक से बन रही है, या इग्नियस रॉक से बन रही है। And in case of the river, the parent material of the soil can be brought by the river. अब नदी से अगर मिट्टी बन रही है तो कौन सा सिल्ट लेकर आई है नदी, क्या डिपोजिशन किया है, अलूवियम लेकर आई है क्या, और brought by wind called the sediment. Dead plants and other organic matter also mix into the soil. So the property of the soil can be known from its texture and color. अगर आपको dark colored rock soil दिखे ना, it means it is rich in iron compounds. Granite rocks generally produce the coarse soil. Large grains होते हैं उनमें, बड़े बड़े पत्थर. While the basaltic rock produce the small and fine grains. The agents of temperature, moisture, wind, they also work on the soil. Moisture and high temperature accelerate the chemical reaction in the formation of soil. अब इनसे तो बहुत तेजी से हो जाता है, लेकिन rich and fertile soil जो होती है ना बेटा, they are mostly found in the wet and warm low latitude. Moisture content कितना होता है soil में, उससे भी soil influence होती है. Perception, जो आपका precipitation है, evaporation है, कितना हो रहा है. Winds also help in the movement of sediments. So there are so many factors who affect the composition of the soil. If the plains are having the fertile soil, तो क्यों है fertile? बहुत सारे रीज़न है. एक तो लो लाइंग एरिया है, अलूवियम सबसे ज़्यादा कलेक्ट हो रहा है रिवर से, विंड लेकर आ रही है बहुत सारे सेडिमेंट्स, प्लेन जो है बहुत ज़्यादा हीट और मॉइस्चर भी आ रहा है उनमें,
जिससे उनकी फर्टाइल सॉइल बन रही है। अब इसको अपोजिट में चले जाओ, हिली एरिया में, वहाँ पे थिन सॉइल कवर आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि वाटर और विंड दे आर हार्डर डाउन द स्लोप्स, वो तो ऐसे चले जाते हैं स्लोप से। तो ये फैक्टर्स जो हैं ये अफेक्ट करते हैं सॉइल फॉर्मेशन को। The quality of soil is also aided by the dead plants, means organic material कितने हैं, ह्यूमस कितना है, डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर कितने हैं, उससे भी आपकी सॉइल बहुत फर्टाइल बनती है। एनिमल्स ऑल्सो हेल्प इन द सॉइल फॉर्मेशन, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, डक बरोस है ना, रैट रैबिट, ये सब करते रहते हैं, विच हेल्प इन वेदरिंग द सॉइल पार्टिकल्स एंड इन दिस प्रोसेस दे हेल्प इन द सॉइल फॉर्मेशन ऑल्सो। So that is for the soil formation. Now what are the layers of the soil? You can see at the diagram there are the 4 layers: top, subsoil, parent rock and bedrock. Top soil जो है that you can see normally where we grow the plants. It comprises the humus, finer particles होते हैं, rich होती है nutrition content में। You आप ये देखो, you can see here. सब सॉइल की बात करें सो इट इज जस्ट बिलो द टॉप सॉइल। यहाँ पे आप देखो होराइजन बी, ये जो है आपका सब सॉइल है। अब यहाँ पर क्या है, सम न्यूट्रिएंट्स हैं, स्मॉल रॉक पार्टिकल्स हैं, दिस लेयर कलेक्ट्स द रेन वाटर। देन आपका आता है पेरेंट रॉक, बिलो द सब सॉइल वी आर हैविंग द पेरेंट रॉक। इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स विच केम फ्रॉम द वेदर्ड रॉक इन द बेड रॉक, जो बड़े बड़े टूटे फूटे कंकड़ के छोटे पीस होते हैं ना ये। सो दैट्स इट होराइजन सी। देन बेड रॉक की बात अगर हम करें, इट इज द बॉटम लेयर विच द सॉलिड रॉक, जो मेन रॉक है ना वो होता है। इट्स मिनरल प्रॉपर्टीज आर शेयर्ड बाय द टॉप सॉइल फॉर द मोस्ट पार्ट। यू कैन सी दिस होराइजन डी, दिस इज योर बेड रॉक। मेन जो रॉक होता है ना बेटा वो यही होता है, इसी से टूट फूट होकर देखो बड़े कंकड़ पत्थर बन रहे हैं, फिर छोटे, और फिर वो आपकी टॉप सॉइल। सो ये 4 लेयर होती हैं। नाउ मूविंग टू द टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया। बहुत वैरायटी की सॉइल इंडिया में मिलती हैं। वी कैन से इंडिया इज अ होम ऑफ द वैरायटी ऑफ सॉइल। सबसे पहले बात करेंगे हम अलूवियल सॉइल की। मोस्ट फर्टाइल सॉइल है ये, क्योंकि इसमें सिल्ट होता है, इसमें फॉस्फेरिक एसिड होती है, इसमें लाइम होता है, ट्रांसपोर्टेड बाय द रिवर फ्रॉम द माउंटेन एंड डिपॉजिट इन द प्लेन्स। So it is most suitable for the growth of different types of the crop like rice है, sugar cane है, wheat है, oil seeds हैं, vegetables हैं। तो सबसे fertile soil जो है वो alluvial soil है, और जो न्यू alluvium होती है उसे खादर कहते हैं, और जो ओल्ड alluvium होती है उसे बांगर कहते हैं। नेक्स्ट सॉइल जो इंडिया में मिलती है दैट इज ब्लैक सॉइल। क्यों ब्लैक सॉइल? क्योंकि ये ब्लैक है कलर में, इसलिए हमने ब्लैक सॉइल नाम रख दिया इसका। इट इज मेड अप ऑफ द वॉल्केनिक रॉक एंड इट इज रिच इन द आयरन, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम। इसमें सबसे ज़्यादा हम उगाते हैं कॉटन, इसीलिए कई बार हम इसे कॉटन ब्लैक सॉइल भी कहते हैं। देन टोबैको, मिलेट्स यहाँ पे अच्छे से उग जाते हैं। अच्छा, ब्लैक सॉइल में ना जो मॉइस्चर कंटेंट करने की ना कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। एक बार इसमें पानी आ गया ना तो अंदर नीचे नहीं जाने देगी, वो अपने आप में ही उसे रखेगी, तो मॉइस्चर बहुत ज़्यादा कंटेंट करती है। देन लेक्ट्राइट सॉइल की बात करते हैं हम, कंपोज्ड ऑफ क्ले एंड ग्रेवल मेनली। This soil is rich in aluminium and it can retain the moisture, so it is good for growing tea, coffee, rubber, cashew nut, coconut, etc. रेड सॉइल की बात करें अगर हम, तो रेड सॉइल जो है बेटा, as the name suggests, it is made from the crystalline rocks, जिनमें क्या होता है, आयरन ऑक्साइड, इसीलिए ये रेड कलर में है ना। It is rich in iron, but it is not very fertile. इसमें moisture भी बहुत लो होता है, therefore it needs irrigation for cultivation. Proper irrigation इन्हें देना पड़ता है, पानी की कमी होती है। फिर भी millets, groundnut, cotton, pulses, tobacco हम यहाँ पे उगा सकते हैं। You can see the distribution pattern of soil in the map of India. Now moving to the another soil, that is the mountain soil. It is comprising the stones and pebbles. Mountain name ही लिखा हुआ है, mountains में मिलती है। Suitable for the crops like grapes हो गए, apples, trees like pine, sal, rosewood. Desert और sandy soil की बात करें,
तो अगेन ये ड्राई ग्रेनी होती है, बिल्कुल सैंडी इन टेक्सचर होती है, मॉइस्चर बहुत कम रिटेन करती है. इट इज़ नॉट गुड फॉर कल्टीवेशन और फार्मिंग. क्रॉप्स लाइक कॉटन, बार्ले, मेज, मिलेट्स कैन बी ग्रो with the adequate amount of irrigation. So these were the types of soil. Now moving to the problems of soil, that is the soil erosion and exhaustion. Soil erosion क्या होता है? It is a movement of top soil from one place to the another. और ये कोई भी कर सकता है. Wind, water, other causes, natural, human, दोनों फैक्टर हो सकते हैं टॉप लेयर के उड़ने में. उसे कहते हैं हम इरोजन. Various natural and human factor can be responsible for it. Natural factor में हम देखते हैं स्लोप है हमारा, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल आती है आपकी, ओवर यूजिंग कर लिया, ओवर ग्रेजिंग कर लिया, बहुत सारी चीज़ें हैं. ये ह्यूमन फैक्टर है. जब हम ओवर ग्रेजिंग कर रहे हैं, ओवर यूजिंग कर रहे हैं, केमिकल ऐड कर रहे हैं इसमें, ओवर इरिगेशन कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा? ये सलाइन कर देगा, ज़मीन को ख़राब कर देगा. एक्सेस डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं तो भी सॉइल इरोजन होगा. इंडिया इज नोटोरियस अबाउट ओवर यूजिंग पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर. ऑलमोस्ट 36% ऑफ टोटल इरिगेटेड एरिया नाउ हैज बीन डिग्रेडेड बाय सैलिनाइजेशन. इतना ज़्यादा हमने केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड यूज़ कर दिए हैं कि आपको नज़र आएगा जो पहले इतनी अच्छी मिट्टी थी ना, स्पेशली पंजाब और हरियाणा की, अब सलाइन हो गई है, खारापन आ गया उसमें. नाउ सॉइल एग्जॉशन की बात करें, व्हेन अ पीस ऑफ लैंड इज यूज्ड फॉर कल्टीवेशन स्पेशली फॉर वन क्रॉप फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, सो इट लॉसेज इट्स न्यूट्रिएंट, तो वो होता है सॉइल एग्जॉशन. सॉइल थक गई भाई, लंबे समय से आप एक ही फसल को उगाई जा रहे हो, रेस्ट नहीं दे रहे हो सॉइल को. सॉइल एग्जॉशन को रोका जा सकता है कैसे? क्रॉप रोटेशन करके, डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो अल्टरनेट पीरियड पे, हम ऐसा कर सकते हैं. Then using chemical fertilizers and manure helps in making soil fertile, but it proves harmful also in the long run. Shorter term के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ amount में आप इसे use कर सकते हैं. और we can left the land for some time. अगर हम कुछ समय के लिए ज़मीन को छोड़ दें, उस पर कोई क्रॉप ना उगाएं, तो भी ज़मीन रिलैक्स कर सकती है और रीगेन कर सकती है इसकी फर्टिलिटी. अब बात करते हैं हम सॉइल कंजर्वेशन की. मैंने आपको पहले ही बोला, कंजर्वेशन वर्ड को आप याद कर लीजिए. कंजर्व, टू सेव. सॉइल टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड टू फॉर्म. सॉइल इरोजन, एग्जॉशन सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि बेटा हमारा फूड तो सॉइल पे ही ग्रो हो रहा है ना, तो हमें प्रॉपर मेजरमेंट लेने पड़ेंगे टू कंजर्व द सॉइल. फॉर दिस साइंटिफिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस शुड बी अडॉप्टेड. हम ऐसा कर सकते हैं कि हम साइंटिफिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करें. अब कुछ प्रिवेंशन मेजर दिए हुए हैं हमें, हम क्या कर सकते हैं? एफॉरेस्टेशन करो. मैं बार बार कहती हूँ, अगर हमने डिफॉरेस्टेशन किया है, पेड़ों को काटा है, तो आप पेड़ों को लगाओ, तभी सॉइल इरोजन को चेक कर सकते हो. शेल्टर बेल्ट लगा सकते हैं, जहाँ पे बहुत हार्ड विंड ब्लो होती हो. वो क्या होता है? रो ऑफ ट्री होती है, एक पेड़, दूसरा पेड़, तीसरा पेड़, लाइन वाइज पेड़, तो उससे क्या होता है? विंड की स्पीड थोड़ी कम हो जाती है, सॉइल इरोजन कम हो जाता है. क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं, अल्टरनेट पीरियड पे सेम ट्रैक्ट ऑफ लैंड पे डिफरेंट क्रॉप्स को उगा सकते हैं. देन फैलोइंग, लैंड कैन बी लेफ्ट फैलो फॉर सम टाइम टू रिकवर और रीगेन इट्स फर्टिलिटी. वो भी जरूरी है बेटा, आप भी 24 घंटे काम करोगे, आपको भी चाहिए होता है ना, रात के 8 घंटे आप सोते हो ना, रिलैक्स करते हो, सेम एज वी कैन फैलो द लैंड. एडिक्वेट फार्मिंग प्रैक्टिसेस हम कर सकते हैं, जिसमें हम देखते हैं मल्चिंग है, टेरेस फार्मिंग है, काउंटर प्लाविंग है, स्ट्रिप क्रॉपिंग है. इस तरीके की क्रॉपिंग करके हम जो है अपनी सॉइल को इरोजन होने से बचा सकते हैं. और सम बाउंड्रीज ऑफ रॉक्स कैन ऑल्सो बी फॉर्म्ड टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर. तो दीज आर द मेजर्स टू कंजर्व the soil or to prevent the soil erosion. Now let's do the quick revision what we have discussed in this chapter. हमने सबसे पहले डिस्कस किया major landforms were the mountain, plains and plateau. Then land is used for variety of purpose, maybe for the habitation, farming, industry, building roads, etc. Land use is converted owing to the several factors. बहुत सारे factors पे depend करती है ये, like farming, habitation, establishing industry. Important factor influencing the land
that include the topography, climate, type of soil, availability of the minerals, waters. Soil forms from the parent rocks, and then its type depends on the various factors like climate, nature of parent rock, plant, animal, time, topography. After that, we have discussed India possesses almost all types of soil: alluvial, black, laterite, red, mountain and desert soil. Soil erosion and soil exhaustion are the serious problem which are degrading the soil. So, adequate steps and measures should be taken to conserve our soil. So, that's end for the chapter. I hope you understand each and every concept. Now, it's your turn. Do the exercise carefully.